Good morning, children. Today we are going to start with the class 11th, chapter number 1. The name of the chapter is Computer System Organization. Actually, this shows that we are learning the computer from the beginning. That is, what is it? Computer word, we are using it. What does it mean actually? And it is a very commonly used term, and in which areas in our world. Actually, nowadays we are everywhere using the computers. Like we know that we are using computers in ATM machine, in the form of ATM machines. Online shopping we are doing with the help of a computer. We are learning through computers. We are doing the reservation through computers. We are paying the payments, telephone bills and all. We are paying it through the computers. We are searching any information, that is again through the computer. We are web surfing, then it is a computer. Everywhere we are using the word computer, computer and computer. Actually, what does it mean? It means that computer is an electronic device that accepts raw fact, processes it and gives the desired results. Actually, this definition is divided into these parts, that is 1, 2, 3 and the 4 parts are there. The first thing is that it is an electronic device, means it works with the electricity only. I know that nowadays we are having a wireless application, that is we can carry the notepad, we can carry the palm top, and they do not require the electricity. They have the adapters with them, and we can, but still at the end we have to charge our adapters. For that also we require the electricity. So initially the computer was an electronic device, right? Second part is that accepts raw facts. Now the word is raw facts. Raw facts क्या होते हैं? ये वो डेटा होता है, ये वो वैल्यूज होती है जो आप कंप्यूटर को देते हो, राइट? एंड प्रोसेस इट, मतलब वो उस इंफॉर्मेशन या जो बात आप बोलते हो उस बात को वो अपनी मेमोरी में कन्वर्ट करता है. लेटर ऑन उसको उस हिसाब से जो भी आंसर समझ आता है वो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट देता है. Actually, what is the raw fact? What is process? What is desired result? The first word is data. जो रॉ फैक्ट होता है वो मेरा क्या होता है? डेटा होता है. जो प्रोसेस है वो ब्रेन वर्क हो गया, एंड जो डिजायर्ड रिजल्ट मिला है वो मेरी क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है. जहां पे हम ये कहते हैं डेटा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा का मीनिंग होता है रॉ, वैसे इंग्लिश में, हिंदी में मीनिंग होता है रॉ का, दैट इज कच्चा. कच्चा का मीनिंग हो गया वो डेटा कौन है जिसको हम कच्चा बोल सकते हैं? दैट इज अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स. You have seen the keyboard. On the keyboard we are having only the alphabets, we are having the numbers, we are having special keys, but we don't have anything specifically mentioned, the name or something like that. We are having that. So that part is called as my raw data, or the raw fact, that is called as my data. Now what happens when this data is entered individually, like we are typing the name of a person, firstly we type, like suppose I want to write Akash, so that I'll write A does not have any meaning in the computer. When it is being processed along with A, K, A, S, H, when it is processed together, then it becomes an information. मतलब information का meaning हो गया हमारा meaningful data. Meaningful data मतलब जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, जो अल्फाबेट्स, जो नंबर्स, जो स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, जब हम उनको कंबाइन करते हैं और वो एक मीनिंगफुल फॉर्मेशन ले लेता है, देन इट इज कॉल्ड एज माय इंफॉर्मेशन. सपोज अगर मैंने पहली बार ए प्रेस करा, देन दोबारा ए प्रेस करा, के प्रेस करा, ए प्रेस करा, एस प्रेस करा, एच प्रेस करा, अब जब ये सारा कंबाइन हुआ, दैट बिकम्स अ वर्ड नेम्ड एज आकाश. अगर मैं इंडिविजुअली ए के लूं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसे आकाश वर्ड से रिकॉग्नाइज करा, देन इट बिकम्स अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट? सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन. लाइक हमने बोला आकाश अलगदाला इज इन क्लास 11C, सो दिस कंप्लीट बिकम्स अ वन सेंटेंस व्हिच मीन्स एन इंफॉर्मेशन. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज माय कंप्यूटर. कंप्यूटर को ये सब वर्क करने के लिए एक उसका एक वर्किंग स्ट्रक्चर है. वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, एंड दैट इज योर हाउ कंप्यूटर वर्क्स बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग और द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स. where we say that we have 3 parts with us. The first part is called as your input, second part is called as your CPU,
and the third part is called as your output. This CPU has 3 parts in it, out of which the first part is called as your ALU, second is called as your CU, and the third one is called as your MU. This MU has 2 parts. One is called as your RAM, another is called as your ROM. Now what is actually going on in the computer? It is the same way, it works in the same way like we people, human beings, are interacting with one another. Suppose I asked a question, what is your name? That becomes my input for a computer. Now my brain starts working and give me the answer that मेरा नाम क्या है. Question understand करा and मेरे brain ने मुझे वो reply करा मेरा नाम क्या है. With the help of my tongue or with the help of my pen paper, I replied that my name is this. So that becomes a output. तो मेरा जो question था that was an input. मेरे ब्रेन ने जब वर्क करा दैट वाज अ सीपीयू, मींस प्रोसेसिंग करी उस क्वेश्चन के ऊपर, और जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था वो मुझे क्या मिला, आउटपुट में मिल गया. दिस बिकम्स योर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग. फाइन. अब ये काम कैसे करती है? सपोज इनपुट का मतलब होता है जो भी चीज, एनीथिंग विच वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड. द फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज आवर कीबोर्ड. कीबोर्ड से जो चीज हम टाइप करते हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स है, चाहे वो नंबर्स है, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स है, एनीथिंग वॉट एवर वी आर टाइपिंग विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड, दैट इज कॉल्ड एज माई इनपुट. अब जो भी इनपुट आप करते हैं वो कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है ना हमारे. वो ब्रेन हमारा यहाँ पर जो वर्क करता है, सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? एमयू, मेमोरी यूनिट के पास जाएगा. क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपके ब्रेन में पहले क्वेश्चन क्या होता है? स्टोर होता है. स्टोर होने के बाद वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का आंसर मुझे रिप्लाई करना है. सेम वे मैंने डाला, क्वेश्चन डाला, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस क्वेश्चन विल गो टू एमयू एंड एमयू इस क्वेश्चन को ट्रांसफर किसे कर देता है? सीयू. सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? डिसाइड्स अबाउट द डेटा कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा आई एम एंटरिंग इन द कंप्यूटर, वेदर इट इज एन अल्फाबेटिकल डेटा और इट इज एन अरिथमेटिक डेटा. अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस. इफ यू आर गिविंग, यू आर यूजिंग द नंबर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज माई अरिथमेटिक डेटा. अगर वो मेरा अरिथमेटिक डेटा या लॉजिकल डेटा है जिसमें मेरे को वैल्यू रिप्लाई में येस और नो चाहिए, अगर वो वाला डेटा होगा, इस तरह का अरिथमेटिक या लॉजिकल डेटा होगा, तो सीयू क्या करेगा? उस डेटा को ट्रांसफर कर देता है एएलयू को. बट माई क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम. This question can never give you the reply in the form of digits. So the CU will store this question in its own memory and process it here itself. और जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो वापस किसको स्टोर करा देता है? एमयू के अंदर. अब एमयू क्या करेगा? उस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा. डिस्प्ले कहाँ करेगा? इट विल डिस्प्ले ऑन द कंसोल एंड योर कंसोल इज कॉल्ड एज योर मॉनिटर. दिस मॉनिटर इज कॉल्ड एज योर कंसोल, राइट. दिस इज आउटपुट. मॉनिटर का मतलब क्या हो गया? जहां मुझे वो चीज दिखाई दे रही है. मैं जो दे रही हूँ दैट इज कीबोर्ड, मैं जो ले रही हूँ वो मेरा मॉनिटर है, और इन बिटवीन वर्क कौन कर रहा है? सीपीयू वर्क कर रहा है, राइट. नाउ अब ये तो तब था जब हमने एक अल्फाबेटिकल क्वेश्चन पूछा जिसका अल्फाबेटिकल रिप्लाई था, जो सीयू ने अपने पास रखा, रिटर्न करा एमयू को, और फिर उसके बाद मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया. सपोज इट गिव्स मी द आंसर आकाश. सो ये आकाश मेरा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा. सपोज अगर मैंने कीबोर्ड से डाला होता 5 + 10. अब ये न्यूमेरिकल डेटा है. ये न्यूमेरिकल डेटा किस में जाएगा? एमयू में जाएगा. एमयू किसको ट्रांसफर करेगा? सीयू को ट्रांसफर करेगा. सीयू डिसाइड करेगा दिस इज नॉट माय पार्ट, नॉट माय वर्क, तो वो किसको पास ऑन कर देगा? एएलयू को. एएलयू अरिथमेटिक यूनिट है, तो वो इसका रिप्लाई क्या लेगा? 15 लेगा, और उसके बाद इस 15 वैल्यू को किसे दे देगा? एमयू को, और एमयू से कहाँ डिस्प्ले कर देगा? ऑन द मॉनिटर. द प्रोसेसिंग ऑफ योर कंप्यूटर वर्क्स लाइक दिस, right? And the second part is, now whenever we are storing the data in the computer, in this we have, memory has 2 parts. One is the RAM, another is the ROM. Now where RAM stands for random access memory and ROM stands for read-only memory. Means where whenever we are saying the RAM, random access memory means it is a temporary memory. And ROM is your permanent memory. But
RAM is also called as your primary memory. Means whatever the value you are storing in the computer, first it goes in the RAM itself. RAM में जाने के बाद ही वो डेटा आगे पास ऑन होता है. अगर हम उसे परमानेंटली अपनी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो वो किस में डालते हैं, हम लोग रोम में डालते हैं, राइट, एंड देन इट वर्क्स एंड डिस्प्लेज द वैल्यू. So this was the today's introduction of the computer. This way, this chapter will contain few theoretical concepts. I know that you people know all these concepts very well, but still, as per our syllabus, we have to continue with this. So my notes will be given to you as per my schedule only, right? Thank you so much, everyone.